السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ عصر کی نماز کے بعد ابھی سے مغرب سے پہلے تک اور اسی طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 7 بجے تک ہم اور آپ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب یا مختصر رسالہ جو القواعد الاربع کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اس کی مختصر شرح پڑھیں گے۔ اب یہ جو القواعد الاربع نامی رسالہ ہے، یہ بہت ہی مختصر رسالہ ہے، بہت ہی جامع رسالہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم تفصیل سے پڑھیں، اس کی باریکیوں میں داخل ہوں تو وقت بھی اس کے لیے لمبا درکار ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر بھی اگر ہم نے آپ نے پڑھا اور سمجھا اور بہت ساری باتیں جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کا اعادہ بھی ہو گیا، ہم نے اسے دہرا لیا، تو یہ بھی بہت بڑا خیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجلسیں وقت طلب ہوتی ہیں، ہمیں دیر تک بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمت مطلوب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے کام کاج سے فراغت بھی مطلوب ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا ثواب کا ذریعہ ہے۔ علم کی یہ مجلسیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکونت کی، رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کی مجلسیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کے گھیر لینے کی مجلسیں ہیں اپنے پروں تلے۔ تو بہرحال وقت کو بچاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم شروع کریں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجدد الدعوت السلفیہ ہیں، مجدد الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کی مجدد ہیں۔ ائمہ مجددین کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے آغاز میں، ہر صدی کے آغاز میں ایسے لوگوں کو بپا کرتا ہے جو امت کے دین کی تجدید کرتے ہیں، امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتے ہیں، دین کو رینیو کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو عقائد کا انحراف داخل ہو جاتا ہے، بدعمالیاں داخل ہو جاتی ہیں، افکار کا فساد داخل ہو جاتا ہے، باطل فرقوں کی گمراہ گریاں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کا تصفیہ کرتے ہیں، اسے صاف ستھرا کر کے وہ خالص عقیدہ، خالص دین، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور ایسے ہی فرائض، واجبات، عمل کا معاملہ، ایسے ہی اخلاق، کردار، رہن سہن، حقوق، غرض دین اسلام کے تمام تر پہلوؤں پر جو اسلامی معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، وطن میں، دنیا میں، امت کے اندر کہیں بھی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جو فساد، بگاڑ، خلل پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح کے موضوعات لمبا وقت چاہتے ہیں، اگر ہم جگہ جگہ رکیں تو خود ایک نکتہ بھی لمبا وقت طلب ہے۔ اب ہمارے سامنے یہاں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے القواعد الاربع، 4 قاعدے،
4 कवाइद, और ये शरह करने हम जा रहे हैं, शरह पढ़ने जा रहे हैं। ये जो शरह है इसकी बहुत सारी शरहें हैं, कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शरहें लिखी हैं इसकी, जिसमें से एक बहुत ही नुमाया नाम है इस वक्त मुआसिरीन में अल्लामा माली शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान हाफिज़हुल्लाह। ये वक्त के चोटी के उलमा में से हैं, और वो जो किबार उलमा का नाम हम और आप सुनते हैं, शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का, और उनके साथियों का, जिनमें से कई लोग वफात पा चुके हैं, उस सिलसिले के मेरे भाइयों ये आखिरी फर्द हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं, हमारे बीच में हैं, और उम्मत उनके इल्म से फायदा उठा रही है। अकीदे में, मनहज में, उसूलों में उनके इल्म से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। तो इस किताब की या इस रिसाले की शरह के लिए हमने जिस शरह का इंतखाब किया है वो शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान हाफिज़हुल्लाह ही की शरह है। अब किताब का जो नाम है अल क़वाइदुल अर्बा, इसकी वजाहत आ रही है आगे। नाम जो है मुसन्निफ का, किताब पर ये लिखा हुआ ली शेख अल इस्लाम अल इमाम अल मुजद्दिद अल शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, ये लिखा हुआ है। अब जो शेखुल इस्लाम है, इस्लाम के शेख, यानी इस्लाम पूरे इस्लाम के मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत, वो शख्सियत जिनसे पूरे अहले इस्लाम ने फायदा उठाया है, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, अरब, अजम, पूरी दुनिया में। इसलिए ऐसी शख्सियत को शेखुल इस्लाम कहा जाता है, जिनका इल्म, जिनकी खिदमत पूरे अहले इस्लाम को मुहीत हो और अहले इस्लाम उससे फायदा उठाएं। तो ये तो हो गया उसका माना। इमाम है इसलिए कि इमामत का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। अब उनके नाम के साथ में अल मुजद्दिद लिखा हुआ है। अब इस मुजद्दिद के लफ्ज की अगर हम शरह करें, मुजद्दिद के सिलसिले में गुफ्तगू करें, मुजद्दिद कौन होता है, कैसे होता है, तो एक लंबा वक्त चाहता है, लेकिन एक बिल्कुल ही सरसरी सी बात कहकर के बात आगे बढ़ाते हैं कि देखिए मुजद्दिद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर सदी पर भेजा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की तजदीद के लिए बपा कर दे, भेज दे, पैदा कर दे, तैयार कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही आदमी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुजद्दिद किसको कहते हैं? जो दीन की तजदीद करे। इस तजदीद के लफ्ज से गुमराहियां भी लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है। तजदीद से लोगों ने जदीदियत का माना भी निकालने की कोशिश की। जदीदियत यानी नया दौर, नया जमाना, एडवांस 21वीं सदी ईसवी। इस दौर में हमें पुराना छोड़ना चाहिए, नए की तरफ आना चाहिए। नए दौर के नए तकाजे, नए तकाजों में नए इज्तिहादात और नया रास्ता, नई थियरियां, नए अफकार, नजरियात, इस तरह का माना भी लोगों ने निकालने की कोशिश की है। और याद रहे कि ये असल में गुमराही का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तजद्दुद जो है ना, यहां जो तजदीद कहा गया, अल मुजद्दिद मन युजद्दिदु लहा दीनहा, हदीस में, इसका माना क्या है? इसका माना यह नहीं है कि हर 100 साल पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई साहिब इल्म, कोई इमाम, कोई आलिम ऐसा पैदा होगा जो नए दौर के नए तकाजों के मुताबिक दीन को बदल कर नई शक्ल में पेश कर दे। ये माना नहीं है। इसका माना यह है कि वो दीन जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में उतरा है, उस दीन के अंदर जो बहुत सारी गड़बड़ियां, खामियां धीरे 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 है ना, अरसा गुजरने के बाद जो उसमें दाखिल हो जाती हैं, और उसके पीछे बहुत सारे असबाब होते हैं। शैतानी लाइन है, दुनियादारी है, दुनिया परस्ती है, जहालत है, गुमराह करने वाले पेशवा हैं, गुमराह करने वाले है ना, जो जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया अइम्मा है, यानी जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा साबित करते हैं। लोग उनको बड़ा समझते हैं, लेकिन वो अपनी कम इल्मी या कह लीजिए कि बेबसीरती की वजह से वो उम्मत को ऐसी चीजों में रहनुमाई करने लगते हैं जिसमें उन्हें रहनुमाई करने का हक नहीं पहुंचता। और नतीजा ये होता है कि दीन खालिस और खरा रहने के बजाय उसके अंदर आमेजिशें, मिलावटें आ जाती हैं।
उसके अंदर आमेजिश है और मिलावटें आ जाती हैं। अब वो जो मिलावटें आई हैं, जो खलल आया है, सही अकीदा नहीं रह गया, उसमें बिगाड़ आ गया, सही मनहज नहीं रह गया, उसमें कुछ कमी आ गई, फराइज में लोग कोताही करने लगे, एक हक को बातिल समझने लगे, बातिल को हक समझने लगे, ये जो उसके अंदर खलल कमियां आई है, इन तमाम कमियों को, खामियों को निकाल कर मिलावटों से पाक साफ करके एकदम खरा और खालिस करते हैं, वो जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुजद्दिद दुनिया में पैदा हो। यह है इसका माना। ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि वो पुराने दौर की जो अरब के दौर में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे, आप मबूस किए गए, वो घोड़े का दौर था, खच्चर का दौर था, वो ऊंटनियों पर सवारियां करने का दौर था, वो देहात का, आराबियत का, या कह लीजिए कि है ना करवियत, बदवियत का दौर था। उस दौर में जो दीन उतरा था, जो इस्लाम उतरा था, आज नए दौर में वो दीन कहां से हमारी रहनुमाई कर सकता है? इसलिए हमें उसे नए रंग में ढालने की जरूरत है। ये नहीं करते हैं। जैसा कि आज एक तबका दीन को नए दौर में ढालने की कोशिश करता है। करना क्या है? उसी दीन को, अल्लाह तबारक व तआला के असल दीन को आज के नए दौर में, अगले 1000 साल के बाद, उसके बाद क़यामत तक उसी असल दीन से हर जमाने में जो भी मसाइल पैदा होते हैं उसकी रहनुमाई लेनी है। कोई नया तरीका नहीं निकालना, तरीका वही रहेगा जो अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का फरमान अपने अंदर समोए हुए हैं, जिसकी शरह, जिसकी वजाहत, जिसका अमली नमूना हजरात सहाबे किराम की सीरत में और उनके बाद उनकी शागिर्दों की जिंदगी में हमें मिलता है। और उसी रास्ते पर उम्मत के मुहद्दिसीन, अइम्मे दीन चलते रहे। हमारे सामने उनकी तारीख, उनकी सीरत मौजूद है। उसी दीन को हर दौर में, हर जमाने में अपने तमाम मसाइल का हल बनाना है। तो जदीदियत नहीं, इस माने में जदीदियत नहीं, इसी को अरबी जबान वाले यानी अरब के मुअल्लिफीन, अरबी राइटर्स इसको कहते हैं असरानियत, जिसको हम लोग अपनी जबान में समझने के लिए, जबकि जदीदियत भी अरबी ही लफ्ज है, लेकिन अरब उलमा इसको क्या लिखते हैं? असरानियत। असरानियत का मतलब यह होता है कि इस्लाम की रोशनी में इस नए दौर में मत चलो, बल्कि इस्लाम के अंदर मॉडिफिकेशन करो, उसमें तब्दीलियां करो, उसमें कुछ कमी बेशी करो और आजकल के दौर और तकाजे के मुताबिक इस्लाम को ढालने की कोशिश करो। नए दौर के तकाजों को, नए दौर के हालात को, नए दौर के मसाइल को इस्लाम के सांचे में ढालो, नहीं, ये नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? इस्लाम को नए दौर के हिसाब से मॉडिफिकेशन करो, उसके तब्दीलियां करो। कैसे वो पुराना दौर, खच्चर और गधे पर सवारी करने वाले दौर का जो इस्लाम है, वो आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और फैसिलिटी, आजकल जो तरक्कियात हैं, इस दौर में कैसे रहनुमाई कर सकता है? इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो एक गलत फहमी तो यहां इसी मुजद्दिद के लफ्ज से, के नाम के साथ ही, इस लफ्ज की वजाहत के साथ ही ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। यहीं से एक दूसरी गुमराही भी लोगों के यहां आई है, दूसरी गुमराही भी आई है। अब मैं तफसीलात में अगर जाऊं तो वक्त वाकई जाएगा। मौलाना मौदूदी को भी लोग मुजद्दिद कहते हैं और मौलाना मौदूदी साहब ने भी मुजद्दिद वाली हदीस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और अपनी मन की मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने मुजद्दिद और मुजद्दिदीन की फिहरिस्त बनाई, उसकी लिस्टिंग की है कि कौन कौन मुजद्दिद हैं। इस तरह से वो किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक मुजद्दिद मानते हैं और किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक मुजद्दिद नहीं मानते। उन्हीं के साथी और उन्हीं के शागिर्द ने, या उसी फिक्र को आगे बढ़ाने वाले पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर इसरार ने बहुत गंदे अंदाज में अपनी किताब के अंदर लिखा। जब वो, उनकी किताब है शिया सुन्नी मुफाहमत, मैं किताब का तारुफ नहीं कराना चाह रहा हूं, लेकिन इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कोई देखना चाहे तो देख ले, जान ले कि इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर क्या लिखा है। तो शिया सुन्नी मुफाहमत नामी जो किताब है, इन्होंने बड़ी कोशिश की, ईरान गए और खुमैनी के मजार पर गए और दुआएं पढ़ी और क्या क्या नहीं किया, उसका ये मौका नहीं है। लेकिन डॉक्टर इसरार ने उस किताब के अंदर मुजद्दिद पर गुफ्तगू करना शुरू किया, तो ऐसे किसी को छोड़ा नहीं जो मुजद्दिद, जिसको मुजद्दिद न बना दिया हो। सारे मुनहरिफीन, मुशरिकीन, सूफिया, अहले बिदअत, खुराफात करने वाले,
दीन की शक्ल को मस्क करने वाले, बिगाड़ने वाले तमाम किस्म के लोगों को मुजद्दिद करार दिया, तमाम के लोगों को, किस्म के लोगों को मुजद्दिद करार दिया। उसमें मिसाल के तौर पर आज के दौर में जैसे मौलाना मौदूदी को मुजद्दिद उन्होंने भी लिखा, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए शाह वलीउल्लाह साहब को मुहद्दिस, ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब का मसला जरा सा कुछ मुलाहजात के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मिसाल के तौर पर आगे बढ़े तो सैयद कुतुब को मुजद्दिद, हसन अल बन्ना को मुजद्दिद, ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये देवबंदियों के जो बड़े बड़े उलमा हैं, शब्बीर अहमद उस्मानी और क्या कहते हैं उनको, असीर माल्टा, और इन तमाम लोगों को किस फेरिस्त में दाखिल कर दिया? इन सबको मुजद्दिदीन की फेरिस्त में दाखिल कर दिया। लंबी गुफ्तगू है, लंबा मौजू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो खुलासा यह है कि मुजद्दिद किसे कहते हैं? अब ये तो किस दीन की तजदीद कर रहे हैं ये अफराद, ये अशखास जिनके नाम इन्होंने लिए हैं अपनी किताब में, किसकी तजदीद कर रहे हैं? कौन सा दीन है जिसकी तजदीद कर रहे हैं? याद रखें, इनहिराफात, दलालतें, गुमराहियां, शिरकियात, बिदात, खुराफात, फिक्री बिगाड़, हर तरह के इनहिराफात की तजदीद कर सकते हैं ये, लेकिन अल्लाह के खालिस दीन की, तौहीद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तजदीद नहीं कर रहा है इनमें से कोई भी। और हैरानी की बात तो यह है, हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम लिया, और ये हम जिनकी किताब पढ़ रहे हैं शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। इनको बड़ी मुश्किल से मुजद्दिद कहा, इनको बड़ी मुश्किल से मुजद्दिद कहा कि शिरकियात और मुशरिकाना रसूम और रवाज को खत्म करने में उनकी कोशिशें हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि जब इनको और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जब मुआजना करके, कंपेयर करके देखा जाता है तो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के मुकाबले में बौने नजर आते। इस तरह से इन्होंने तनकीस की है। बहरहाल मेरे भाइयों, अभी इस मौजू पर हम मुस्तकिल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इशारा है, क्योंकि मुस्तकिल मौजू है तजदीद वाली हदीस का माना, मफहूम, मुजद्दिद कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है किसी मुस्तकिल दर्स में, किसी मुस्तकिल खिताब में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा इस पर गुफ्तगू की जाए, ताकि हम सबको इस सिलसिले में जो गलत फहमियां हैं उस गलत फहमियों को समझने में मदद मिले। लेकिन आज जो हमें गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है, इस रिसाले की शरह पर गुफ्तगू करनी है कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की ये छोटी सी किताब है जिसमें उन्होंने शिर्क को पहचानने और तौहीद को पहचानने, तौहीद की मारिफत के लिए और शिर्क की मारिफत के लिए 4 बुनियादी कवाइद बयान फरमाए। और ये जो कवाइद बनाए हैं ये अपनी तरफ से नहीं बना लिया इन्होंने, बल्कि वो कवाइद कहां से निकले हैं? उसी अल्लाह के कलाम की आयात से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से, सलफ उम्मत की सीरत से, जिंदगी है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और बाद उनके बाद के असलाफ की सीरत की रोशनी में इन्होंने क्या किया है? इन कवाइद को जमा किया है। 4 कायदे हैं, आ रहे हैं आपके सामने। बहरहाल इन कवाइद पर हम गुफ्तगू करना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त हकीकत में कम है बहुत, तो ऐसा ना हो कि हम है ना इस सरसरी तौर पर भी गुफ्तगू मुकम्मल ना कर सके। सबसे पहली बात हम ये देखें कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है? 4 कवाइद को बयान करने से पहले, पहला कायदा, दूसरा कायदा, तीसरा कायदा, चौथा कायदा, इसको बयान करने से पहले क्या किया है? कुछ हमदर्दी और उम्मत से मोहब्बत, तालिब इल्म से मोहब्बत है ना, और नुस्ह और खैरखाही का जज्बा रखते हुए उन्हें कुछ उसूली बातों की, ईमानी बातों की, बुनियादी बातों की रहनुमाई फरमाई है। वो है शुरू में। अच्छा, उसको शुरू करने से पहले इतना सरसरी तौर पर जान लें कि अल कवाइदुल अरबा, 4 कायदे। बाज लोग इसको अल कवाइदुल अरबा बोल देते हैं। अरबा आइन पर है ना इक्तिफा करना है, उसके ऊपर आगे ता की जरूरत नहीं है। अरबी कायदे ग्रामर के मुताबिक वो गलत है। अरबी जबान का निजाम यह है कि 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के 9 तक की गिनती जो है, 3 से लेकर के 9 तक की गिनती का जो निजाम है वो ये है कि जिसको गिना जा रहा है अगर वो मुजक्कर है तो गिनती मुअन्नस आती है, और जिसको गिना जा रहा है अगर वो मुअन्नस है तो गिनती मुजक्कर आती है।
बात समझ गए? जैसे भी कायदा है ना, कायदा ता लगी हुई है उसके अंदर। अब ये मुअन्नस फीमेल है, इसकी जमा कवाइद है। अब हम अगर कहना चाहें 4 कायदे, तो जिसको गिनना है वो क्या है? कायदे। और गिनती कितनी है? 4, 3 से लेकर के 9 के बीच में है ना। तो अब कायदा मुअन्नस है और हमको 4 बताना है, तो इसके लिए हम गिनती का लफ्ज क्या लाएंगे? मुज़क्कर लाएंगे। इसीलिए अरबा लाया गया, अल कवाइदुल अरबा। ऐसे समझने के लिए आप दूसरी किताब को समझ लें। शेखुल इस्लाम की किताब है अल उसूल अस्सलासा, अल उसूल अस्सलासा। इसमें आप देखिए, उसूल जो है वो असल की जमा है, और असल के माने जड़ के होते हैं, और असल मुज़क्कर है। असल क्या है? मुज़क्कर है, यानी जेंडर के हिसाब से क्या है? वो मेल है। अब उसको हम 3 बताना चाह रहे हैं, तो 3 की गिनती क्या है? सलासा। आप देख रहे हैं कि ये उसूल का लफ्ज जो है, चूंकि असल की जमा है और ये मुज़क्कर है, इसलिए इसकी गिनती हम क्या ला रहे हैं? मुअन्नस ला रहे हैं। अल उसूलु अस्सलासतु कहते हैं, अस्सलासा आगे ता लगी हुई है। तो 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 3 से 9 तक का निजाम यह है कि मुज़क्कर से की गिनती मुअन्नस और मुअन्नस की गिनती मुज़क्कर लाई जाएगी। ठीक है, ये है। और दूसरी चीज ये है कि जमा, जिसको गिनना है उसको जमा लाया जाएगा। जैसे उसूल है, असल की जमा है, कवाइद कायदा की जमा है। ये है, बहरहाल ये अरबी ग्रामर से ताल्लुक रखने वाली चीज है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए सरसरी तौर पर इन बातों का जिक्र करना शायद फायदे से खाली ना हो, यादा हो जाए इसके जरिए से। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि अल कवाइदुल अरबा, 4 कायदे। कायदा किसको कहते हैं? कायदा बुनियाद को कहते हैं, सुतून को कहते हैं। ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हुए हैं, इसके 4 पाए हैं कि नहीं पाए? ये 4 पाए, ये हर एक पाया कायदा कहलाता है। गोया कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसकी 4 कवाइद है, 4 सुतून है। अब उस 4 सुतूनों के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड है। आगे का हिस्सा, ये बैठका, और फिर बैठने वाला उस पर बैठता है। तो जिस चीज पर कोई चीज डिपेंड हो उसको कायदा कहते। जिस चीज पर, सुतून पर, बुनियाद पर, फाउंडेशन पर जो चीज बुनियाद हो उसी को कायदा कहते हैं, उसी की जमा कवाइद है। तो अल कवाइदुल अरबा का मतलब है 4 बुनियादें। 4 बुनियादें किस चीज की बुनियादें हैं? ये 4 बुनियादें किस चीज की? ये 4 बुनियादें हैं अल्लाह की सच्ची तौहीद को जानने की, और तौहीद का अपोजिट, तौहीद की जिद, उसके खिलाफ शिर्क को पहचानने की। तौहीद को सही मानों में जानने की और उसकी जिद शिर्क को सही मानों में जानने की बुनियादें हैं क्या? 4 चीजें। 4 चीजें ऐसी हैं बुनियादी फाउंडेशन की, जिसके जरिए से हम और आप सही मानों में तौहीद को समझेंगे और सही मानों में उसके अपोजिट को, शिर्क को समझेंगे। तो गोया कि माना क्या निकला? शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने जो किताब लिखी है, बिल्कुल मुख्तसर सी है। ये 1 से 1.5 सफ़े में है। ये बस 1 से 1.5 सफ़े में, मुश्किल से 1.5 सफ़े, 2 सफ़े के अंदर ही ये पूरा रिसाला है, ये 4 कायदे। लेकिन शरह करने वाले उलमा ने जब शरह करना शुरू किया तो किसी की शरह 40 सफ़े में है, किसी की शरह 50 सफ़े में है, किसी की शरह उससे भी ज्यादा है। जितनी तफसील से शरह की जाएगी उतनी ज्यादा शरह तफसीली हो जाएगी। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि अल उसूल सलासा और ये अल कवाइदुल अरबा, आमतौर पर ये दोनों रिसाले साथ में छपते हैं। आमतौर पर दोनों रिसाले साथ में छापे जाते हैं। दोनों अलग अलग रिसाले हैं, उनमें 3 उसूल अलग हैं और ये 4 कायदे अलग हैं। लेकिन आसानी के लिए कि तालिब इल्म के सामने जहां 4 कायदों का इल्म आ जाए वहीं 3 उसूलों का भी इल्म आ जाए, जहां 3 उसूलों का इल्म आ जाए वहीं 4 कवाइद का भी इल्म आ जाए, इसलिए आमतौर पर साथ साथ में ही ये चीजें छपती हैं। बहरहाल तो बुनियाद जो है ना, बुनियाद, जड़, उस जड़ पर जो चीज डिपेंड, जिस चीज पर कोई चीज डिपेंड होती है उसको जड़ कहते हैं। अब उस जड़ से बहुत सारी शाखें निकलती हैं, बहुत सारी शाखें निकलती हैं, बहुत सारे उसके गोशे निकलते हैं, इसी को कायदा कहा जाता है। अब यहां पर 4 कायदे जो हैं वो तौहीद बतलाने के लिए है सही मानों में, और शिर्क बतलाने के लिए है सही मानों में। जैसा कि बात इससे पहले आई थी कि अगर हम उसूलों को ना समझें, फाउंडेशन को ना समझें, तो फिर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक तौहीद को समझ के बैठा रहेगा। हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक
शिर्क को समझ करके बैठा रहेगा। आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दे करके बात को आगे बढ़ाता हूं। सूफियों को हम जानते हैं ना, सूफिया हजरात, वही कश्फ, करामात, इल्हाम, अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट इल्म हासिल करना, शरीयत के जाहिर को नहीं मानना, शरीयत के जाहिर को नहीं मानना, कहना कि ये जाहिर, शरीयत का जो जाहिर है ये कॉमन लोगों के लिए, ये जनरल पब्लिक के लिए है। जो खास लोग हैं, अल्लाह के चाहने चहेते, अल्लाह के महबूब, प्यारे, ऊंचे मकाम वाले, मर्तबे वाले, वो इस जाहिर परस्ती पर नहीं रहते, बल्कि वो बातिल अंदर गहराई में उतरते। इसीलिए लोग इतना आगे बढ़ गए कि इन लोगों ने कहा कि शरीयत का जाहिर है और शरीयत का बातिन है। शरीयत का जो जाहिर है वो अवाम के लिए है, वो छिलका है, और शरीयत का जो बातिन है वो असल में मग़ज़ है, वो गूदा है, लुब्बे लुबाब है। इस तरह की बातें इन लोगों ने कही। अब इनके यहां आप देखिए, इनके यहां तौहीद का माना क्या है? सूफियों के यहां तौहीद का माना क्या है? सूफियों के यहां तौहीद का माना है तौहीद वजूदी, तौहीद वजूदी, वजूद का तौहीद, यानी मौजूद अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात। दुनिया में कौन मौजूद है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। अब इस एतबार से उन्होंने तौहीद का माना क्या समझा कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। और इसका माना क्या निकल गया? ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या हैं? सब के सब नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का मजहर है। कितनी बड़ी गुमराही है। अब सूफिया ने तौहीद का मतलब ये समझा जो आयने शिर्क है, बल्कि शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है। आप देखिए तो तौहीद को इन्होंने जो डिफाइन किया वो शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है। तो इस तरह से तौहीद का माना लोग अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल ले। किसी ने तौहीद का माना निकाल लिया कि तौहीद का मतलब है दुनिया में सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलेगी, अल्लाह की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है। हुक्म और फैसला और निजाम कायनाती तौर पर तो अल्लाह तबारक व तआला ही का है, और शरीयत का निफाज दुनिया में होना चाहिए। लेकिन शरीयत के निफाज की शुरुआत कहां से होती है? अल्लाह तबारक व तआला की तन्हा इबादत और बंदगी से। अकेले की इबादत होगी, वहां से दीन का क़याम होगा, वहां से अल्लाह तबारक व तआला के कल अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस्लाम दुनिया में बरपा होगा, बपा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनिया के अंदर क्या होगा? कायम होगा। अल्लाह का दीन दुनिया में कायम हो जाए, इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह की तौहीद दुनिया में कायम हो जाए, दुनिया से शिर्क का खात्मा हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाए, न किसी कब्र की, न शजर की, न हजर की, न देवी देवता, न औलिया, न सालिहीन, किसी की भी पूजा, किसी की भी इबादत और बंदगी नहीं होनी चाहिए। यह होगा तब दीन का क़याम होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनिया में नाफिज होगा। लेकिन तौहीद की बात ही ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की खालिस बंदगी की तालीम ही ना हो, दावत ही ना हो, न मिंबर पर आए, न किताबों में आए, न पंफलेट में आए, न मीडिया पर आए, कहीं भी ना आए, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का माना क्या बना लिया जाए? अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत का हवाला देकर के क्या कर लिया जाए? दुनिया में सियासत की कुर्सी, इख्तिदार की कुर्सी हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये तौहीद का माना कहां से आ गया? ये माना तौहीद का तो नहीं। तो अगर हम कायदे नहीं बतलाएंगे, किताब और सुन्नत की रोशनी में कवाइद और प्रिंसिपल्स नहीं समझेंगे, बुनियादों को नहीं समझेंगे, तो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करेंगे? तौहीद की तारीफ कर लेंगे, तौहीद की डिफिनीशन कर लेंगे, तौहीद बना लेंगे। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक शिर्क को डिफाइन करके उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें? अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में, सलफ़ उम्मत की सीरत की रोशनी में हम ये जानें कि सही मानों में तौहीद क्या है और सही मानों में शिर्क क्या है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज को तौहीद समझ ले और वो तौहीद के खिलाफ हो। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के मुताबिक हम शिर्क बना ले, हालांकि वो शिर्क ना हो बल्कि कुछ और हो। इसलिए हमें कवाइद को, सिस्टम्स को, उसूलों को जानना जरूरी है। बहरहाल अब यहां पर हमें यही जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, किताब में, सुन्नत में, सहाबा की सीरत में तौहीद क्या है। अल्लाह के दीन में, अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत में तौहीद क्या है। अल्लाह के दीन में, नबी की सुन्नत में शिर्क क्या है। इसे हमें जानने की जरूरत है
اور اسی کو بتلانے کے لیے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے یہ چھوٹا سا نہایت قیمتی رسالہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں کیا کیا ہے؟ حوالے قلم کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس چھوٹی سی کتاب کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ ہم توحید کا معنی کچھ سمجھ بیٹھیں گے اور شرک کا معنی کچھ سمجھ بیٹھیں گے، اور لوگ دنیا میں پتہ نہیں کس چیز کو توحید بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں گے، اور ہم نہیں جانیں گے تو اس کو توحید سمجھ لیں گے، نہ جانے کس چیز کو شرک بنا لیں گے، اور ہم شرک کو کیا کریں گے؟ ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق شرک تسلیم کر لیں گے، شرک بنا لیں گے اور اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رسائل کو، جو عقیدے کے رسائل ہیں، کتاب کے سنت کے مطابق لکھے گئے ہیں، ایسے رسائل کو ہم کیا کریں؟ ایسے رسائل کو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ آپ نے وقت نکالا۔ اس کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کا وقت ابھی فی الحال طے ہوا ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے کہ آپ اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اور شرک کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مصنف نے بات کہی ہے، سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے مصنف رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ۔ فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم، پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہے نا شروع کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اللہ کا کلام بسم اللہ سے شروع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ آپ ہے نا کسی بھی اپنے پیغام میں، خط میں بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا کرتے تھے اور اپنے تمام کاموں کی شروعات بسم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے بھی کیا کیا ہے؟ اس چھوٹی سی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اعطی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر فان هذه الثلاث عنوان السعادہ۔ یہ ہے ایک دم آغاز، اس رسالے کا آغاز۔ کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بڑا کرم والا ہے، عرش کا رب ہے، عرش کا رب ہے عظمت والا، عرش کا عظمت والا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کیا ہے؟ عظیم ہے۔ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں آخرت میں آپ کا ولی ہو جائے۔ آپ کیا ہو جائے؟ ولی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، گارڈنگ کرنے والا، ہے نا، کام آنے والا، کارساز۔ یہ سارے معنی ہوتے ہیں کس کے؟ ولی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بڑا کرم والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ وہ آپ سے کیا کرے؟ آپ کو دنیا میں آخرت میں اپنی ولایت عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی آپ کا معاون ہو، مددگار ہو، آپ سے محبت کرے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، معاون ہو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بابرکت بنائے، آپ جہاں بھی رہیں، آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک رکھے، بابرکت رکھے۔ اچھا، برکت کی جب بات آتی ہے نا تو لوگ عام طور پر برکت کو مال اور زمین جائیداد سے جوڑ دیتے ہیں، ہے نا، کہ بڑی برکت ہو رہی ہے، بڑی برکتیں ہوئی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ملے تو برکت ہے، دولت ملے تو برکت ہے۔ اصل برکت کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر میں بڑھوتری عطا فرما دے، ہر خیر میں، ہر بھلائی میں ہمیں کیا عطا فرمائے؟ بڑھوتری عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے
किसी के पास माल है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, औलाद है, बड़ी तादाद दिखाई दे रही, ये भी बरकत है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जाहिरी तौर पर हमें कसरत न दिखाई दे, लेकिन मानवी तौर पर क्या हो, मानवी तौर पर वो चीज हमारे लिए बे इंतहा खैर की हो। एक आदमी के पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास खालिस तौहीद का अकीदा है, खालिस ईमान है, शिर्क का कोई जर्रा भी नहीं है। आप बताइए कि वो शख्स ईमान के एतबार से बाबरकत है कि नहीं बाबरकत? उसको अल्लाह ने खालिस तौहीद अता फरमाई है, तो क्या है वो? तौहीद के एतबार से, ईमान के एतबार से क्या है? बड़ा मुबारक है। यानी अल्लाह ने उसे ठोस तौहीद अता फरमाई है, ठोस ईमान अता फरमाया है, उसे शिर्क से बचाए है, इसलिए बाबरकत है वो। किसी के पास माल नहीं, दौलत नहीं, इल्म बहुत अच्छा है, तो उसे बरकत है कि नहीं बरकत? इस तरह से बरकत की कई शक्लें होती हैं। बहरहाल क्या कहते हैं उसके बाद? अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आप जहां कहीं हो, वअन यजअलका, और अल्लाह तबारक व तआला आपको उन लोगों में से बनाए, इज़ा उअतिया शकरा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाए तो शुक्रगुजार हो। आम तौर पर होता है कि अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलती है तो इंसान शुक्रगुजारी नहीं करता, उसे फरामोश कर देता, भूल जाता है, नजरअंदाज कर देता है। और बाज लोग तो नेमतें अल्लाह अता फरमाता है और शुक्रगुजारी किसकी करते हैं? अल्लाह की मखलूक की शुक्रगुजारी करते हैं। बाबा का करम है, क्या कहते हैं? बाबा तेरा करम है, दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। करम किसका बना दिया? अल्लाह की मखलूक का करम बना दिया। वो जिसका करम बयान किया जा रहा है उस पर किसका करम होता है? उस बाबा पर भी अल्लाह ही का करम है। अगर कोई खैर उसे मिला है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो नवाजिश है, अतिया है, करम है, मेहरबानी है, इनाम है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं इज़ा उतिया शकरा, अल्लाह ताला आपको उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें अता किया जाए, अल्लाह की तरफ से मिले, अता हो, तो शुक्रगुजारी करे वो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता फरमाऊंगा। अल्लाह के नबी कहते थे अल्लाहुम्मा जअलनी लका शक्कारा, ऐ अल्लाह तो मुझे अपना बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाला बना दे, शक्कार बना दे, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बना दे। ये तरीका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपको अल्लाह उन लोगों में से बनाए जिन्हें अल्लाह की तरफ से नेमत मिलती है तो क्या करते हैं? वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वही जब तुलिया सबरा, और जब उनके ऊपर आजमाइश आती है, आजमाइश, मुसीबत, परेशानी, जिस्म में, जान में, माल में, औलाद में, किसी भी जगह उस पर मुसीबत आती है तो क्या हो? ऐसे इज़ब तुलिया सबरा, जब उसे आजमाया जाए तो सब्र करे। अल्लाह ताला आपको उन लोगों में से बनाए कि जब आपको नेमत मिले तो आप शुक्र करें, और जब आप पर मुसीबत आए, परेशानी आए कोई भी, तो आप क्या करें? सब्र करें। वअन यजअलका वइज़ा अज़नबा इस्तग़फ़रा, और अल्लाह ताला आपको उन लोगों में से बनाए जो गुनाह करें तो अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल भी करें, बख्शिश का सवाल भी करें। मेरे भाइयों, गुनाह हो जाना बड़ा मसला नहीं है। गुनाह हो जाने के बाद उसी पर अड़े रहना, डटे रहना, और अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश का सवाल न करना, माफी की कोशिश न करना, यह सबसे बड़ा मसला है। वरना इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते इंसान से गलती, इंसान से चूक हो सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? जब इंसान से गलती हो तो क्या करे? वो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करे, अल्लाह से तौबा करे, माफी मांगे, मग़फ़िरत का सवाल करे। तो अल्लाह आपको उन लोगों में से बनाए जो गुनाह करते हैं तो अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। उसके बाद क्या कहा? फ़इन्न हाज़िहि सलास उन्वानुस सादा, इसलिए कि ये तीनों चीजें सादत की निशानी है। सादत, नेक बख्ती की निशानी है ये, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर इनाम फरमाए तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, मुसीबत आए तो अल्लाह ताला के लिए सब्र करे, और गुनाह का काम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत का, बख्शिश का सवाल करे। ये तीन चीजें अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता फरमा देगा, यकीनन वो सादतमंद होगा, नेक बख्त होगा, अल्लाह की तरफ से खैर पाने वाला, भलाई पाने वाला हो। ये मुसन्निफ ने पहली बात बतौर मुकद्दमे के आपके सामने, हमारे सामने पेश की। अब इसमें आप देखें कि मुसन्निफ किस कदर हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपसे दुनिया में आखिरत में मोहब्बत करे, आपका वली हो जाए, आपका कारसाज हो जाए, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको मुबारक करे और आपको अल्लाह ताला शुक्रगुजार बनाए,
मुसीबत आए तो सब्र करने वाला बनाए, और गुनाह हो जाए तो माफी मांगने वाला, तौबा करने वाला और मगफिरत का सवाल करने वाला बनाए। ये एक बहुत ज्यादा मुखलिस इमाम, आलिम, दाई का वतीरा है ये कौम के साथ, अवाम के साथ हमदर्दी, मोहब्बत का इजहार, उसके साथ नुस्ह का, बही खाही का, अच्छा सोचने का। मेरे भाइयों, ये तरीका हुआ करता था असलाफ के यहां। तो बहरहाल मेरे भाइयों, आज भी अगर आज मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस छोटी सी किताब के अंदर शिर्क को शिर्क कह रहे हैं और मुशरिकों को मुशरिक कह रहे हैं, तो ये हमदर्दी की वजह से कह रहे हैं। कोई उनको नफरत नहीं है, उनको कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि क्या है, हमदर्दी है, प्यार है, मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि कौम के लोग, अल्लाह के बंदे, ये जाने की सही तौहीद क्या है, ये जाने की सही शिर्क, हकीकत में शिर्क क्या है। इसीलिए तौहीद को तौहीद कह रहे हैं और शिर्क को शिर्क बतला रहे हैं। तो इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तो खुद मुसन्निफ का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने हमें इस तौहीद का इल्म अता फरमाया, और मुसन्निफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी खैर खाही के लिए, हमारी हमदर्दी के लिए और हमारी भलाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा और पैदा किया, और उन्होंने दीन इस्लाम की तजदीद फरमाई। उम्मत की जड़ों में शिर्क घुसा हुआ था। अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से, बड़ी मेहनत, चांफशानी और कद्दो काविश के जरिए से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। यह है बिल्कुल सरसरी तौर पर इस मुकद्दमे का माना। अगर हम तफसील में जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि काफी लंबा वक्त दरकार है, लेकिन हमें सरसरी तौर पर यह बात आपके सामने वाज़ेह की है। अब इस सिलसिले में जो अगली बात मुसन्निफ ने कही है वो क्या है, वो अगली बात जो है वो यहां से कहते हैं, अब दाखिल हो रहे हैं तौहीद के मसले में, दाखिल तौहीद का माना समझा रहे हैं। सच्ची तौहीद हकीकत में क्या है, खालिस तौहीद क्या है। भी लोगों ने तौहीद का माना अलग अलग समझा हुआ, इशारा हो गया आपके सामने, लेकिन ये इतना ही नहीं है जितना आपके सामने बयान किया गया। तौहीद में बिगाड़, तौहीद में फसाद, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बहुत कुछ फसाद है, बहुत कुछ बिगाड़। तो देखें क्या कहते हैं मुसन्निफ, आगे कहते हैं, इअलम अरशदकल्लाहु लिताअतिही, जान लो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी इताअत की रहनुमाई फरमाए। अब हमको आपको नसीहत कर रहे हैं मुसन्निफ, कहते इअलम, जान लो। कौन? मुझे कह रहे हैं जान लो, आपको सबको, जो भी मुखातब है सबको कह रहे हैं इअलम, आपको जान लेना चाहिए, मालूम होना चाहिए, अन्नल्लाह इअलम अरशदकल्लाहु लिताअतिही। ये देखिए दुआ, कहते हैं जान लो अल्लाह ताला आपको अपनी इताअत की राह दिखाए, अल्लाह ताला आपको अपनी इताअत की, अपनी फरमाबरदारी की रहनुमाई फरमाए। क्या जान लो? अन्नल हनीफियता मिल्लतु इब्राहीम, अन्ना अल हनीफियता मिल्लत इब्राहीम अन तअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अब यहां से देखें, खालिस तौहीद के कायदे बतला रहे हैं। खालिस तौहीद, आप कैसे जानेंगे कि तौहीद खालिस है? तौहीद तो खालिस रखने के लिए कायदे क्या हैं, हमें जानने की जरूरत है। तो देखिए मुसन्निफ ने क्या कहा, हनीफियत जो है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। हनीफियत किसका दीन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और हनीफियत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है वो क्या है? अन तअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, वो ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करके, प्योर करके, अल्लाह तबारक व तआला की क्या करो? खालिस इबादत करो। खालिस, ये खालिस इबादत अल्लाह ताला की होगी तो यही हनीफियत कहलाएगी। हनीफियत, हनफियत और हनीफियत में डाउट नहीं हो जाना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। याद रहे, हनीफन, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक से जायद जगहों पर कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा।
ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کیا معنی ہے حنیف کا؟ حنیف کا معنی آ رہا ہے کہ حنیف کا معنی اصل میں کیا ہے؟ حنیف یہ حنف سے بنا ہوا ہے۔ حنف، حنف جانتے؟ حنف کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ میلان، جھکاؤ، ایک طرف ہو جانا، کنارے ہو جانا، کنارہ کچی اختیار کر لینا۔ تو جھکنا، مائل ہونا، کنارے ہو جانا، یہ سب معنی ہے کس کا؟ حنف کا۔ اور اسی سے حنیف بنا ہے صفت، اور اسی سے حنیفیت بنی ہے نسبت۔ تو کیا ہوا؟ معنی کیا نکلا؟ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، اور جس ایمان اور عقیدے پر وہ چلتے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ کیا تھی؟ وہ راستہ حنیفیت کہلاتا ہے۔ اور حنیفیت کا نام کس کا ہے؟ مائل ہو جانے کا۔ مائل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو جانا، سب کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ کر کے کس کی طرف مائل ہو جانا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو جانا۔ یہ ہے حنف کا معنی، اور اسی سے نکلا ہے حنیفیت۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے، عیسائی نہ تھے، بلکہ حنیف تھے اور سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ حنیف، مائل، کیا معنی ہے حنیف کا؟ مائل، کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر سب سے رشتہ ناتا توڑ لینے والے تھے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے رشتہ کاٹ کر کے، قوم سے رشتہ کاٹ کے کیونکہ قوم بت پرست تھی، باپ سے رشتہ کاٹ کے کیونکہ باپ بت فروش تھے، بت گر تھے اور بت پوجا کرنے والے تھے، ان سے رشتہ کاٹ کر کے۔ رشتہ کاٹنا کس معنی میں؟ کہ ان کے شرک اور بت پرستی کے دین میں ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ رشتہ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو باپ نہ مانے، ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، اس معنی میں نہیں۔ اس معنی میں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت سب کو پہنچائی، اور سب سے اسی توحید کو بچانے کے لیے بیزاری کا اعلان کر دیے گا۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک کہ تم شرک سے، بت پرستی سے توبہ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے لگو۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور ان بتوں سے بھی، غیر اللہ سے بھی، جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو، میں ان سب سے کیا کر رہا ہوں؟ میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ یہ تھا ان کا طریقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ حنیفیت۔ اور حنیفیت کس چیز کا نام ہے؟ حنیفیت نام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کا، سب سے رشتہ ناتا توڑ کر کے، نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی مورتی چھوٹی نہ بڑی، نہ آسمان میں سورج، نہ ستارے، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمینی معبودان باطلہ، نہ آسمانی معبودان باطلہ، کسی سے بھی کوئی سمجھوتا، کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ اسی توحید کو بچانے کے لیے وقت کی حکومت کی مخالفت، اپنے باپ کے خلاف، اپنے کنبے والوں کے خلاف، قبیلے والوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ ان کا طریقہ، اسی لیے ان کو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، سب سے رشتہ ناتا توڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اللہ کی طرف مائل ہونے والے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہم امت محمد کے لوگوں کو، اور ہم سے پہلے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا کرو؟ اتباع کرو، پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ صاف فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی،
और क्या कहा उसमें, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कीजिए। सबसे रिश्ता तमाम बुतों से, मूर्तियों से, गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़कर एक अल्लाह की तरफ माइल होने वाले बन जाए। तो अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप क्या करेंगे? आप इब्राहीम के दीन की पैरवी करेंगे। इब्राहीम के अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की पैरवी करेंगे। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई इस आयत करीमा में भी, और इसके अलावा भी कई आयत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये बात बयान फरमाई है। लेकिन हम इख्तिसार के साथ ही गुफ्तगू कर रहे हैं तो पता ही चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था? सबसे रिश्ता काट कर, न कोई देवी, न देवता, न मूर्ति, न बुत, न सूरज, न चांद, न सितारा, न नबी, न वली, कोई नहीं। याद रखें क्या था उनका? उनका था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। तो सबसे रिश्ता काटना, एक अल्लाह की तरफ माइल होना। तो हनीफियत, हनफियत हनफ से बना हुआ है, और हनफ का मतलब होता है माइल होने वाला, एक किनारे हो जाने वाला। इसीलिए आप देखें जो लोटा होता है ना, लोटा जिसको बधना कहा जाता है, उसकी जो टोटी होती है, इस पूरे जिस्म के अलावा एक तरफ किनारे निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है, जहां से पानी गिरता है। इसीलिए उस टोटी को क्या कहा जाता है? उसको भी क्या कहा जाता है? उस टोटी को भी हनफिया कहा जाता है। ऐसे ही है ना, नल को भी क्या कहते हैं? उसको भी टोटी कहते हैं, और टोटी को अरबी में क्या कहते हैं? हनफिया कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो असल बॉडी से किनारे एक तरफ निकला हुआ है। बहरहाल ये तो सिर्फ लफ्जी माना समझने के लिए। तो सबसे बाई काट करके सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल हो जाने वाले थे, झुक जाने वाले थे, अल्लाह की तौहीद पर डटे रहने वाले और उसी पर इस्तिकामत के साथ जमे रहने वाले थे। तो ये माना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हनीफ होने का, और हनीफियत का माना है। अब इसीलिए मुसन्निफ ने समझाया इसी बात को, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने दिल से माइल होने वाला, अपने अमल से माइल होने वाला, अपनी नीयतों से माइल होने वाला, अपने अकीदे से माइल होने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा सबसे रिश्ता काट लेने वाला कोई इबादत के काबिल नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की। यह है हनीफियत। हनीफियत खालिस दीन है। अब यहां पर आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहा मिल्लत इब्राहीम, तो मिल्लत, मुसन्निफ ने जब कहा मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इब्राहीम हनीफियत है। और हनीफियत क्या है? हनीफियत यह है कि आप क्या करें? अन ताबुदल्लाह, कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। यहां से हनीफियत का माना बतला रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का, हनीफियत का माना बतला रहे हैं। तो माना क्या है? क्या कहा? हादिल हनीफिया मा काल, कहते अन ताबुदल्लाह फकत। कहते हैं शेख सालिह फौजान कहते हैं कि मुसन्निफ ने यह नहीं कहा कि हनीफियत नाम किसका है, आप अल्लाह की इबादत करें। सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का नाम हनीफियत नहीं है कि बस इतना कह दो कि अल्लाह की इबादत करें। यह हनीफियत नहीं है, बल्कि हनीफियत में क्या है? हनीफियत में यह है मुखलिसन लहुद्दीन। वो जो इबादत है ना, इबादत खालिस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। अब यहां बात खुल गई कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा की इबादत करे तो भी हनीफियत नहीं, शिर्क है, बुत परस्ती है। और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे लेकिन अल्लाह की इबादत के साथ किसी और को भी इबादत का हकदार समझे, तो वो हनीफियत के दायरे में नहीं आएगा। आज लोग कहते हैं अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, 5 वक्ता नमाजों में आते हैं, रोजे, नमाज, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात सब करते हैं, इबादत के सारे बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मसला क्या है? उसी के साथ मसला यह है कि किसी और के सामने भी सर टेकने के लिए कोई हफ्ते में, कोई 2 हफ्ते में, कोई महीने में, साल में किसी न किसी अल्लाह के बंदे की कब्र का दर्शन करता है और उस पर चादरें चढ़ाता है, सर टेकता है, अपनी मुरादों का हाथ उठा करके सवाल करता है, ये भी करता है। अब ऐसा तो हनीफ नहीं हो सकता है। कहां हनीफ हुआ? एक अल्लाह की तरफ सिर्फ माइल होगा तो हनीफ होगा। और अल्लाह की तरफ माइल होने का माना क्या है?
کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دے، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرے گا، تب جا کر کے وہ کیا ہوگا؟ حنیف ہوگا۔ اسی لیے مصنف نے صرف یہ نہیں کہا کہ حنیفیت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، یہ ضروری ہے ساتھ ساتھ پہ بولنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید صحیح معنوں میں لوگوں کے یہاں نہیں آ سکتی، شرک کی ملاوٹ، آمیزش، خلط ملط دکھائی دے گا۔ آگے کیا کہا؟ مخلص لہ الدین، کہ مصنف نے یہ کہا اپنے دین کو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دو، تو یہ ہے حنیفیت۔ اور جب یہ کہہ دیا گیا دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، تو اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ اب کسی بھی طرح کی پارٹنرشپ کا، شراکت کا کوئی دخل ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو مخلص لہ الدین، دین کو خالص کر دو، یعنی کیا مطلب؟ عبادت کو خالص اللہ کے لیے انجام دو، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھی کسی کی عبادت کو شامل کر لے، خلط ملط کر لے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت پورے طور پر ویسٹ ہو جائے گی، وہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس کا کوئی اجر، اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنا مقصد بنائے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ کسی اور کو بھی اس کے اندر ساجیدار اور شریک۔ تو ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ ملاوٹوں کی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ ہے شرک کی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح سے یہ معنی ہے حنیفیت کا، اور حنیفیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنے کا نام حنیفیت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ مختصر سی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کس نے؟ مصنف نے تذکرہ کیا۔ الحنیفیہ ہے نا، الحنیفیہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، توحید کا دین، وہ کیا ہے؟ وہ حنیفیت۔ وہ کیا ہے؟ وہ حنیفیت ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا؟ حنیفیت کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کی کوئی بات بیان کی جا سکتی تھی، لیکن مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ تم کیا کرو؟ کہ تم حنیف بن کر کے رہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجیدار اور شریک نہ بناؤ، خالص عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا مقام یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذریت ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں۔ جانتے ہیں نا اس چیز کو کہ ابو البشر آدم ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو ہے نا ابو البشر کہا جاتا ہے، ثانی، دوسرے ہے نا، دوسرے باوا آدم علیہ السلام پہلے، اور دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام، تیسرے نمبر پر کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے کہ کیا ہو؟ یہ طے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص توحید کا دین تھا، اور اسی کی انہوں نے دعوت دی، اسی کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ انہی کے دین کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ یقیناً اونچا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے پڑھنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، یہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے اور رہے گا۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کا مقام کم ہو گیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں آگے دیکھیے،
आगे क्या है मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले तमाम नबियों के बाप हैं और सब के सब आपकी ज़ुर्रियत और खानदान के लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वजअलना फी ज़ुर्रियतिही अन-नुबुव्वत वल किताब, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में अन-नुबुव्वह वल किताब, हमने नबूवत भी रखी और किताब भी उतारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यही बात कही कि इब्राहिम की ज़ुर्रियत और आपके खानदान में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम खास तौर पर यहां पर आया हुआ है। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि बनी इसराइल जो है ना, बनी इसराइल ये सब कौन है? बनी इसराइल दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते कौन है? इब्राहिम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटे इसहाक हैं और पोते याकूब अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र यहां पर फरमाया। बहरहाल यहां पर एक बात अच्छी तरह से हमारे जहन में रहनी चाहिए और हमने इससे पहले भी पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम में से एक बेटे इसहाक हैं। इसहाक के बेटे कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब ही इसराइल हैं। इसराइल कौन है? इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, नाम याकूब है और लक़ब इसराइल। यह इब्रानी जबान का लफ्ज है। इसराइल के माने होते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ईल अल्लाह को कहते हैं, इसरा बंदे को कहते हैं, इसरा बंदे को, और ईल अल्लाह तबारक व तआला को। इसराइल का माना क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो ये उनका क्या है मेरे भाइयों? लक़ब है, नाम याकूब है। बहरहाल खुलासा ये है, बताना मैं यह चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से एक बेटे इसहाक है, दूसरे इस्माइल है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में याकूब अलैहिस्सलाम है। तमाम बनी इसराइल के अंबिया जितने भी आए हैं वो याकूब, इसहाक के बेटे याकूब ही की नस्ल से पैदा हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे इस्माइल के अलावा, इसहाक के अलावा वो कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हैं और उनकी नस्ल से एक नबी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में भेजे गए हैं। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस तरह से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की नस्ल से पैदा हुए, सिवाय हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आपकी पैदाइश इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानवादे में हुई थी। तो तमाम के तमाम अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानने की जरूरत है कि जितने भी लोग आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबके सब आप ही के खानदान के, आप ही की ज़ुर्रियत के माने जाते हैं। मेरे भाइयों ये क्यों, ऐसा क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील, अपने जिगरी दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीम और इज्जत अफजाई फरमा रहा है। तकरीमन लहू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत अफजाई और तकरीम के लिए काम हुआ है। वजअलहुल्लाहु इमामन लिन्नास, यानी कुदवा, और अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बना दिया, आइडियल बना दिया। किस चीज में? अकीदे में आइडियल है, अकीदे में आइडियल है। तौहीद के बाद में इतनी कुर्बानियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आप भी क्या करें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहा? आप भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर चले। उनका जो दीन है हनीफियत का सबसे बाईकाट होकर के एक अल्लाह की तरफ माइल होने वाला जो अकीदा है, आप भी क्या करें? उसी पर चलें। इसीलिए बार बार कहा गया कि आप मिल्लत इब्राहिम को, है ना, की पैरवी करें, इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे की क्या करें? पैरवी करें। इस बात का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कई आयात के अंदर। बहरहाल
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बनाया? इमाम बनाया। इमाम किस चीज में? इमाम आइडियल बनाया, कुदवा बनाया। अकीदे के बाब में, ईमान के बाब में, तौहीद के बाब में, तौहीद की राह में आने वाली मशक्कतों पर सब्र करने के बाब में, इन तमाम चीजों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम है, पेशवा है। सबको चाहिए कि सब क्या करें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें। अब ये बात बयान करने के बाद अगली जो बात मुसन्निफ बयान कर रहे हैं वो क्या है? वो ये है, कहते हैं जब तुम्हें मालूम पड़ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहां पर यही बात कह रहे हैं मुसन्निफ, कहते हैं जब आपको पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो जान लो कि इबादत उसी सूरत में इबादत कहलाएगी जब उसमें तौहीद पाई जाएगी। मेरे भाइयों, मेहनतें रायगा हो रही हैं। शिर्क के साथ, बदअकीदगी के साथ इबादत करना, दौड़ धूप करना, मेहनत करना, मशक्कत करना और मतलब अपने आप को जफाकशी में डाल देना, याद रखो इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर क्या हो? इबादत में तौहीद ना पाई जाए। यहूदियों का, ईसाइयों का तस्करा आया हुआ है ना सूरह फातिहा ही के अंदर, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। वो मग़ज़ूब अलैहिम में अल्लाह तबारक व तआला की गजब की मार पड़ी है यहूदियों के ऊपर। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म रखा लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया। और नसारा को अल्लाह ने गुमराह कहा, वलद्दालीन, और गुमराहों का रास्ता भी नहीं दिखाना। इन दालीन का क्या मसला है? गुमराहों का क्या मसला है? गुमराहों का मसला यह है कि उन्होंने इबादत तो बहुत की लेकिन जिहालत के साथ की। इबादत की लेकिन जिहालत के साथ की, इल्म नहीं हासिल किया, जाहिल के जाहिल रहे और रुहबानियत का रास्ता अख्तियार कर लिया। तो साफ कहते हैं जान लो कि इबादत उसी वक्त इबादत कहलाएगी जब उसके अंदर तौहीद पाई जाए। जैसे नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती, नमाज को नमाज नहीं कहा जा सकता जब तक कि नमाज पढ़ने वाला बावजू ना हो, पाकी हासिल ना कर चुका हो। ये मिसाल है। जैसे इबादत के लिए वजू का होना शर्त है, इबादत के लिए वजू का होना शर्त है, ऐसे इबादत के अल्लाह तबारक व तआला के यहां कबूल होना, अल्लाह ताला की यहां इबादत की कबूलियत क्या है? साफ साफ क्या कहा? उस सूरत में हमारी इबादत कबूल होगी जब उसके अंदर तौहीद पाई जाए। तौहीद के बगैर इबादत ऐसे ही कबूल नहीं होगी जैसे वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। ये अमली मिसाल है। अमली मिसाल के जरिए से अकीदे की मिसाल साबित कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जब शिर्क, फइज़ा दखल शिर्क फिल इबादह, जब इबादत में शिर्क दाखिल होता है या दाखिल होगा, फसदत, तो इबादत क्या हो जाएगी? बिगड़ जाए। इबादत में शिर्क दाखिल हुआ तो इबादत क्या हो जाएगी? इबादत अकारत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आगे क्या फरमाया मुसन्निफ ने? कल हदस इज़ा दखल फित तहारा, जैसे अगर हदस दाखिल हो जाए वजू में तो वजू टूट जाता है, ऐसे अकीदे में अगर बिगाड़ दाखिल हो जाए तो अकीदा क्या होगा? ये आप देखिए, ये मुसन्निफ की हिकमत अमली है, मुसन्निफ की दानाई है, बसीरत है और उम्मत की फिक्रमंदी है कि क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती, ऐसे ही वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती, ऐसे ही तौहीद के बगैर इबादत नहीं हो सकती। और उसके बाद क्या कहा? उल्टा करके देखिए क्या कहा? जैसे वजू टूटने से, जैसे हदस हो जाए, यानी आदमी इस्तिंजा करने चला जाए, मिसाल के तौर पर पाखाना है, पेशाब वगैरह अगर चला जाए तो उसकी वजह से वो हदस कहलाएगा। और हदस की वजह से उस आदमी का अंजाम क्या होगा? हदस की वजह से उस आदमी का अंजाम यह होगा उसका वजू टूट जाएगा। तो जैसे हदस की वजह से वजू टूट जाता है, ऐसे शिर्क की मिलावट की वजह से इबादत टूट जाती। सिर्फ तौहीद होनी चाहिए, शिर्क की मिलावट हरगिज नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हदस के होने से वजू टूटता है, ऐसे ही बिल्कुल याद रखें कि इबादत के अंदर शिर्क की मिलावट की वजह से इबादत क्या होती है? ज़ाये हो जाती है, अकारत हो जाती है। ये बात मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मतन के अंदर समझाई। क्या बात मालूम हुई हमें बात मालूम हुई
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश अपनी मखलूक के हमारी तख्लीक जो है अपनी इबादत के लिए की है, और इबादत उसी वक्त इबादत होगी जब उसके अंदर तौहीद पाई जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वजू उस वक्त, नमाज उस वक्त होगी जब वजू क्या हो, इंसान ने वजू कर रखा हो, और वजू उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक वजू टूट ना जाए। बिल्कुल वैसे ही इबादत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक उसके अंदर शिर्क दाखिल ना हो जाए, शिर्क दाखिल ना हो जाए। यह है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का ये मतन है, दूसरा हिस्सा। और इसके अंदर मुसन्निफ ने ये बात समझाई है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये बात समझाई है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें चाहिए कि हम इबादत के बारे में भी जाने कि तौहीद के बगैर इबादत नहीं हो सकती। आज देखो दुनिया का क्या हाल है मेरे भाइयों, क्या हाल है दुनिया का। लोग बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी मशक्कतें उठाते हैं, बड़ी तगोदो, लेकिन अफसोस है कि उनका अकीदा सही नहीं है। शिरकिया अकीदा है, बातिल अकीदा है, शिरकिया अकीदा है, बातिल अकीदा है। तो अब जाहिर सी बात है उनकी सारी नेकियां बर्बाद होंगी कि नहीं बर्बाद होंगी। वो इबादत नहीं कहलाएगी जिसमें शिर्क पाया जाए। बिल्कुल वैसे ही वजू, वो नमाज नहीं कहलाई जाएगी जब तक उसके अंदर वजू ना पाया जाए। और वजू उस वक्त तक मेरे भाइयों, वजू जब तक रहेगा तब तक उसकी नमाज शुमार होगी। बगैर वजू के अगर हो जाएगा तो उसकी वजह से उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। साफ लफ्जों में यह बात मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर बयान फरमाई। इसके बाद जो अगला नुक्ता है, तीसरा हमारे सामने, वो तीसरा नुक्ता है, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब दूसरा पहलू। पहले क्या समझा, इबादत हनीफियत का नाम है और इबादत के अंदर तौहीद का पाया जाना जरूरी है। तौहीद नहीं तो इबादत नहीं कहलाएगी, ये बात हो गई। अब देखिए अपोजिट, कहते हैं जब आपको यह मालूम पड़ गया कि अगर शिर्क की मिलावट होगी इबादत के अंदर तो इबादत को क्या करेगी, वो क्या करेगा, वो शिर्क बर्बाद कर दे। इबादत में शिर्क की मिलावट होगी तो इबादत का क्या हाल होगा, इबादत खराब हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। वाहबतल अमल, और क्या फरमाया, अमल को बर्बाद कर देगी। वाह, शिर्क क्या करता है, शिर्क अमाल को बर्बाद कर देता है। मुसन्निफ साफ साफ बात कहते हैं उसका करने वाला मुशरिक सारा साहिबुहु मिनल खालिदीन फिन्नार, शिर्क करने वाला आदमी और उसी पर मर जाने वाला आदमी हमेशा जहन्नम में रहेगा। जब आपको ये सारी बातें मालूम हो गई तो कहते अब आपको ये मालूम होना चाहिए, और सबसे अहम चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो बात यह है, और कहते हैं इसलिए बतला रहा हूं ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिर्क के इस जाल से बाहर निकाल दे। शिर्क के जाल से क्या करे, बाहर निकाल दे। वही शिर्क बिल्लाहिल्लज़ी क़ालल्लाहु तआला फी, और वो क्या चीज है मेरे भाइयों, वो चीज है अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही शिर्क के बारे में इतनी सारी मजम्मत बयान फरमाई है। तो आपको हमको ये तीसरी बात समझा रहे हैं मुसन्निफ, चौथी बात बल्कि समझा रहे हैं कि जब आपको मालूम पड़ गया कि शिर्क अगर इबादत में मिक्स होगा, कितना शिर्क, एक सजदा अगर मिक्स हो जाए, जिंदगी भर हमने अल्लाह की इबादत की है लेकिन एक सजदा किसी गैर का किया है, तो उस एक सजदे की कुफ्र और शिर्क होने की वजह से अगर तौबा नहीं किया है, मरने से पहले अगर तौबा नहीं किया है तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम हमेशा के लिए जहन्नम होगा। यह बात मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर बयान फरमाई है। तो यह बात हमें भी जानने की जरूरत है और बहुत बुनियादी तौर पर जानने की जरूरत है। साफ साफ यही बात है कि जब आप जान लेंगे, जब आप इस चीज को जान लेंगे तो आपको इसका सिला क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा। हो सकता है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको इस जाल से निजात दे देगा। अब आई बात समझ में कि मुसन्निफ ने अल क़वाइदुल अरबा क्यों लिखी है, 4 कायदे क्यों, ताकि सही मानों में लोग तौहीद जान जाए और सही मानों में लोग शिर्क से वाकिफ हो जाएं, आगाह हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, इसलिए ये बात आपके सामने आई है। अब सही तौहीद क्या है, सही शिर्क क्या है, जब जानेंगे तो अल्लाह ताला हमें और आपको शिर्क के जाल से नजात अता फरमाएगा। शिर्क के जाल से, शिर्क के कांटे से हमको नजात कैसे मिलेगी, जब हम सही तौर पर तौहीद जानेंगे और तौहीद का अपोजिट
اس کی ضد شرک کو سمجھیں. اور اسی مقصد کے لیے یہ چھوٹا سا رسالہ القواعد الاربع نامی مصنف رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا تھا. ہم جانتے ہیں نا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1115 ہجری میں اور وفات 1206. یہ آپ سوچئے کہ 1206 میں، اور آج کیا چل رہا ہے؟ آج چل رہا ہے 1447 چل رہا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال؟ تقریباً 240 سال سے زیادہ. 240 سال. اسی لیے علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 250 سال پہلے امت کے ایک مجدد نے ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا لکھا. ٹھیک ہے، تو اب شرک کے جال سے نکلنے کے لیے، شرک کے جال سے گتھم گتھا جو آدمی پھنسا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے، اللہ کی قسم ہے، جو لوگ توحید سے ناواقف ہے نا، جن کا سارا دین کس سے جڑا ہوا ہے؟ قبر سے، مزار سے، اس درگاہ اس درگاہ، وہ چھوٹے وہ بڑے، وہاں ہفتہ واری، وہاں 15 روزہ، وہاں سالانہ ہے کہ نہیں، وہاں ماہانہ. لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک جال ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں. شرک کا جال، شرک کا جال ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جال سے نجات دے دے گا. کب؟ جب آپ صحیح طور پر توحید کو جان لیں گے اور شرک کو جان لیں گے تو آپ کو اس جال سے نجات مل جائے گی، ورنہ کیا ہوں گے؟ پھنسے رہیں گے. کبھی اتفاق ہوا تھا، ہے نا، کبھی اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا کہ ذرا دیکھیں اجمیر میں بابا کی قبر پر لوگ جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں. ذرا دیکھ لیا جائے آنکھوں کے سامنے سے، تاکہ ڈنکی کی چوٹ پر بولا بھی جا سکے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ان مزارات پر کیا ہوتے ہیں، ان قبروں پر کیا ہوتے ہیں، اس ولی کے، اس بابا کے کی تربت پر، آستانے پر کیا ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے، آپ کو پسینہ آ جائے، آپ چکرا جائیں، آپ بے ہوش ہو جائیں اس منظر کو دیکھ کر کے، جب لوگ اپنے سروں کو، ہے نا، چادروں کے، پھولوں کی چادروں میں نیچے اٹھا کر کے، سر ڈال کر کے اس میرے بھائیو قبر والے کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ہے نا. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جو کچھ بھی شرکیہ کام کرتا ہے کر لیتا ہے، اور کر کے گھوم کر کے سیدھا سیدھا نکل آئے، یعنی پیٹھ دکھا کر کے نکل آئے. یہ آپ مسجد میں ہیں، ہم، یہ ممبر ہے، کرسی ہے، یہ قبلہ ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو واپس کیسے جاتے؟ نماز سے فارغ ہوتے تو کیسے جاتے؟ گھوم جاتے اور گھوم کر کے نکل جاتے. لیکن وہ عقیدہ بنا ہوا ہے ان کا کہ نہیں بابا کے مزار پر آئے ہیں ہم، اور ان کے دیے سے تو ہمارا کام چلتا ہے، یہ تو ہمارے ایسے ہیں، فلاں ہیں. اگر ہم نے اس قبر کو پیٹھ دکھایا گستاخی ہو جائے. کتنا بڑا جال ہے بھائی، کیسا جال ہے شرک کا، اتنی مشکلات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں بھی نہیں کہا ہے، مسجد حرام میں بھی کہ الٹا نکل کر کے آؤ. مسجد نبوی میں الٹا نکلنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جال ہی ہے، شرک کا جال. شرک کا جال ہے کہ انسان پھنسا ہوا ہے اسی کے اندر. اسے نکلنا بھی چاہتا ہے تو نکلنے کی طاقت سے نہیں ہے، اور وہ نکل پاتا نہیں ہے کیونکہ اتنا ایمان اور توحید اس کے پاس خالص نہیں ہوا ہے کہ وہ نکل سکے. تو اسی بات کو کیا کہا، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ. کہتے ہیں جب تم جان لوگے شرک کی حقیقت کو، کہ شرک جب عبادت میں مکس ہوتا ہے عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور عمل کرنے والے کے سارے عمل کو حقارت کر دیتا ہے، اور اس کا کرنے والا شرک کا مرتکب، مجرم، مشرک، خالدین من الخالدین فی النار، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ سب سے زیادہ اہم جو چیز آپ پر واجب ہے وہ کیا ہے، جس کا جاننا آپ کے اوپر واجب ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب یہ جانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرک کے جال سے چھٹکارا دے دے گا. تو نہیں تو پتا چلا کہ سب کو خوش کرنا پڑ رہا ہے. اجمیر والے کو بھی خوش کرو، خواجہ بندہ گیسو دراز حسینی کو گلبرگہ میں خوش کرو، اور غوث پاک کو تو ویسے بھی سالانہ عرس میں آپ کو جانا ہی ہے. اس طرح کا عقیدہ بنا. کتنا بڑا جال ہے. اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو، وہ سفارش کریں گے، وہ کام آئیں گے، وہ مدد کریں گے، وہ جہنم سے نجات دیں گے، وہ جنت میں داخلہ کرائیں گے. اس چکر میں نہ جانے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو
या कह लीजिए कि कब्रों को, मज़ारों को लोगों ने पूजना लाजिम समझा है। इसका एक पहलू और है अगला, इसका एक पहलू और है। वो पहलू क्या है? इसका एक पहलू यह है कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जब हमारे जैसे आप जैसे लोग क्या करते हैं, किसी वली की कब्र पर नहीं जाते, किसी की मज़ार पर नहीं जाते, सर नहीं टेकते, सजदा नहीं करते, फूलों की चादर नहीं चढ़ाते, तो एक अगला पहलू क्या है? ऐसे लोगों को बड़ी तिरछी निगाहों से देखा जाता है। जो जाल में फंसा हुआ है वो हमें क्या करता है? हमें वो तिरछी निगाहों से देखता है। ये देखो मेरे भाई, ये सूरत हाल है। यानी आप अगर शिर्क के खिलाफ हैं तो आपसे नफरत है, आप शिर्क करें तो आप दोस्त हैं। ये है माहौल। कौम समझना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती, इल्म हासिल करना नहीं चाहती, बाप दादों की रीत रिवायत पर और अपने पुरखों और अपने मौलवियों की तालीम पर ऐसे ही डटे पड़े हुए हैं। इनको सोचने का भी मौका नहीं है। तो जाल है, जाल। इस जाल को अगर हम और थोड़ी वजाहत से समझना चाहें तो अल्लाह के कलाम की उस आयत करीमा पर गौर कर लें। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, आपने सुना होगा इससे पहले भी वो आयतें आती हैं, सूरतुल अनकबूत की आयत करीमा, सूरतुल अनकबूत की। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानी मसला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है। किसकी मिसाल? अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है दो लोगों की, एक आदमी की। एक आदमी की मिसाल बयान करता है, मसलन रजुलन फीही शुरका, एक आदमी है जो कई मालिकों का गुलाम है। एक आदमी किसका गुलाम है? कई मालिकान के अंडर में है। वो मालिक कहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी, दूसरा मालिक कहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी, तीसरा मालिक कहेगा उसकी बात। हर एक की बात को मानना और हर एक को खुश करना, हर एक को राजी करना। अल्लाह ने मिसाल देकर के फरमाया, एक आदमी तो वो है जिसके एक मालिक नहीं, कितने मालिक हैं? 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, बहुत सारे मालिकान हैं, बहुत सारे मालिकान हैं। एक वो आदमी है। क्या फरमाया? शुरकाउ मुतशाकिसून, कई एक आका है, मालिक है जो उस एक गुलाम में शरीक है। यानी कई एक लोग हैं जो इस अकेले गुलाम के मालिक बने बैठे हुए हैं, और ये सब का क्या है? अकेला गुलाम है। तो अल्लाह ने क्या? मुतशाकिसून, मुतशाकिसून यानी मुतनाज़िऊन, झगड़ने वाले, लड़ने वाले, ये माना उसका, उसके बारे में झगड़ते हैं। अगर वो फला मालिक की बात मान के उसका काम करने लगे तो इधर से दूसरा मालिक चिल्लाता है, अरे भाई ये काम करो जल्दी, वहां से छोड़ के आए मेरे पास, तो वो नाराज। मेरे पास से छोड़ के उसके पास जाए तो वो नाराज, तीसरे के पास जाए तो ये 2 नाराज, चौथे के पास जाए तो ये 3 नाराज। सबको खुश करना, सब जाल है कि नहीं जाल है? शिर्क जाल है कि नहीं जाल है? कितने लोगों को खुश करेगा? इसीलिए आप लोगों को देखेंगे कि लोग जो है इसी तरह की सोच रखते हैं, और आपको हमको ये सोचते हैं हमारे भाई कि अरे ये लोग तो ना बुजुर्ग, ना बाबा, ना कोई वली, ना कोई कब्र, ना कोई मजार। और आपने सुना होगा डॉक्टर इसरार ने क्या कहा? ये लोग जो है अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, इनको तसव्वुफ से कोई लेना देना नहीं, सूफियत से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, मावरा से लेना देना नहीं। ये सारी इस्तिलाहात उसकी हैं मेरे भाई। हम सब पाबंद हैं अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दीन, कुरान के, नबी के सुन्नत के, तौहीद की का पैगाम किताब और सुन्नत में भरा पड़ा हुआ है। सूफियत से इनको दिल, यानी ये जाहिर करना कि ये लोग तसव्वुफ से और बातिन से और अंदर की चीज से, फलसफे से, इससे दूर रहते हैं। इस तरह से उसने तंजिया अंदाज में अपनी किताबों में 1 से ज्यादा जगहों पर लिखा है मेरे भाइयों। तो अब ये बात हमारी समझ में आ गई कि शिर्क असल में क्या है? एक जाल है। अगर हम इससे निकल पाएंगे तो इसी तरीके से निकल पाएंगे कि हमें पता चले कि शिर्क हकीकत में क्या है, तौहीद हकीकत में क्या है। तो इस जाल से निजात मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इसके अलावा जो इससे कमतर गुनाह हैं, इन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहेगा माफ फरमा देगा, बख्श देगा। और ये बात कहां से समझ में आएगी?
یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہیں سے کیا کہا؟ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد ذکرها اللہ تعالی فی کتابہ، 4 قاعدوں کو جاننا ہوگا جن 4 قواعد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی ان 4 قواعد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب ہم ان 4 قاعدوں کو جانیں گے تو صحیح معنوں میں توحید کو جانیں گے، اور صحیح معنوں میں توحید میں مکس ہونے والے شرک کو جانیں گے، اور جب جانیں گے تو ہمیں اسے اجتناب کرنا، بچنا، پرہیز کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور نہیں جانیں گے تو غلطی سے بھی ہم، میرے بھائیوں، غلطی سے بھی ہم جا سکتے ہیں شرک کے اندر، بلکہ آدمی شرک کو توحید سمجھے گا، توحید کو شرک سمجھے گا۔ صوفیہ نے کیا کہا؟ صوفیہ نے آپ جیسے موحدوں کو مشرک کہا۔ صوفیہ نے کیا کہا؟ آپ مشرک ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں مشرک؟ ہم آپ مشرک ہیں؟ نہیں، موحد ہیں، لیکن مشرک کہا کیوں؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں کہتے ہیں صوفیہ ہم کو مشرک؟ بہرحال بات لمبی ہے، آپ نے وہ نام سنے ہوں گے حسن بصری کے، رابعہ بصریہ کے، اور بہت سارا سب اس کے اندر جھوٹا سچا واقعہ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہتے ہیں صوفیہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کر، قربانی، نذر و نیاز کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اپنی جنت میں، اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی لیے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہے اور ہم بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک کے، اپنے اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کریں گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عبادت کرنے والوں کو ہوگا، ہم کو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ جنت دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی خلل ہے؟ کوئی خلل نہیں، یہی توحید ہے، اور یہی توحید کا ثمرہ ہے، یہی توحید کا نتیجہ ہے، رزلٹ۔ لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے وہ مشرک۔ جنت کی عبادت، جنت کی لالچ میں، جہنم سے بچنے کی لالچ میں جو آدمی عبادت کرے وہ کیا ہے؟ مشرک۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موحد صرف ہم ہیں۔ کون؟ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں موحد کون ہے؟ صرف ہم ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی جنت بھی نہیں چاہتے، ہم کو اللہ کی جنت بھی نہیں چاہیے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ کہتے ہیں یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سی عبادت ہے کہ آدمی لالچ رکھے، اللہ کی عبادت کرنے کے پیچھے لالچ رکھے کہ اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا تو جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی، ہے کہ نہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ضیافت فرمائے گا، مہمان بنائے گا، میزبانی فرمائے گا۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توحید والوں کو اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد الجنت بعمله، لن يدخل احد بعمله الجنہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا انت، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بغیر اللہ کی اپنے عمل کی بنیاد پر؟ آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گا اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی جانب سے رحمت اور اپنے فضل و کرم میں گھیر لے تو میں جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل کی بیس میں نہیں جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی لالچ کرنا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کی جنت کی لالچ کرنی کہ نہیں کرنی ہے؟ یہ نادانی، جہالت، نہیں معلوم ان کو، یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے یہ سمجھ لیا اپنی ہوس سے، خواہشات سے کہ جنت کی لالچ کریں گے، جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔
لیکن یہ نہیں سمجھا اللہ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تم جنت لینے سے، جنت پانے سے، جنت کی، اللہ کی جنت جیسی اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے سے تم کیا کرو گے؟ بے نیازی کا اظہار کرو گے. مجھے ضرورت نہیں اللہ تیری جنت کی. تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ نہیں توہین؟ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے کہ نہیں ٹھکرانا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تلاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے. جنت کی لالچ میں عبادت کریں گے تو ہم مشرک بن جائیں. یہ سب کیوں گمراہی آتی ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہوتا کیسے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں اللہ کی توحید کا سچ مچ جو علم ہونا چاہیے وہ علم دیا ہی نہیں گیا، ملا ہی نہیں. توحید کیا ہے، ربوبیت کیا، الوہیت کیا ہے، اس کا صلہ کیا، اس کا بدلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے وہ، اور اس فضل کا فائدہ ہم کو ملے گا. ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں، کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کی شان میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. اگر پوری دنیا متقی پرہیزگار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. پوری امت، پوری دنیا باغی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، ناشکری کرے، عبادات سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو بہرحال تو یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. ہم نے سرسری طور پر ذکر کیا. یہ سب مستقل عناوین ہے میرے بھائیوں کہ صوفیہ کا عقائد کیا ہے، ہم اسے پڑھیں، جانیں اور ان کے ان باطل عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں. یا جیسے اور بہت سارے فرقوں کا تذکرہ اس سے پہلے آیا، شخصیتوں کا تذکرہ آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے، ان کی گمراہیوں سے، گمراہ گریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال ہم لوگوں نے اب تک جو بات پڑھی ہے وہ صرف مقدمے کی بات پڑھی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مقدمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو آگے جو چاروں باتیں ہیں، چاروں قواعد، ان قواعد کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلاصہ اور نچوڑ بھی ہم مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے تو کم وقت میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر تفصیلات میں جائیں تو بہت زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چاروں قواعد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات میں، اپنے گھر بار میں، اپنے سرکل میں، امت میں، قوم میں، ملک میں، وطن میں، دنیا میں کہاں کہاں لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شرک جانتے نہیں ہیں، توحید میں پھنسے ہوئے ہیں، توحید سے بغاوت کا شکار ہیں، توحید میں خلل ہے ان کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں توحید جانتے نہیں ہیں. تو توحید کا صحیح علم نہیں ہے اور شرک کا صحیح علم نہیں ہے، اسی لیے نہ جانے کس چیز کو توحید بنا رکھا ہے اور اصل توحید کو چھوڑ رکھا ہے. نہ جانے کس چیز کو شرک، نہ جانے کس چیز کو انہوں نے توحید بنا رکھا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق نہ جانے کس چیز کو شرک بنا رکھا ہے. اور جو شرک ہے اصل میں اس کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس میں صبح شام پڑے رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں. ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے. ان 4 قواعد سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ باتیں واضح ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.